लोक हित लोका दी आवाज़। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IT ਕਾਲਜ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਿਵ ਦਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੌਲ ਅਤੇ SSP ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। बहुत बहुत स्वागत सर। आप जी ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ-ਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ BDC ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ BDC ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖੇ-ਵਿੰਡ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਖੇ-ਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹਾਰदिक स्वागत है। पहले आप अपनी बात, ये जो नशा मुक्ति है इसमें अपन प्रयास तो कर रहे हैं, पर आपके और क्या सुझाव है कि हम इस पर और आगे बढ़ सकते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए, और प्रशासन और हम और आप तीनों मिलकर के इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं? तो उसमें आपकी जानकारी जो है ना वो नीचे के लेवल तक की है। वास्तव में कहाँ समस्या है, कैसे इसको हल कर सकते हैं, सरकार इसमें क्या करे, हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात आप जरूर बताएं। तो मैं सोचता हूँ जो पहले यहाँ से बताएं या पहले मैंने बार जो बहनों को आग्रह किया तो इसलिए किया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर कोई देखती है तो माँ बहन देखती, और नशे से सबसे ज़्यादा परेशान कोई घर में होती है तो हमारी माँ बहनें बेटियाँ होती हैं। मैं सोचता हूँ जो कुछ बातें आपने रखी वो मुझे पिछली मीटिंग में भी ये बातें आई। कारण क्या है, बच्चियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था ठीक तरह से है नहीं। अलग से बच्चियों का जब तक कॉलेज नहीं हो, जैसे ये है कॉलेज, अब ये विभिन्न प्रकार की कोर्सेज की है, तो ऐसे ही मतलब पूरे तरनतारण में और आप कितनी कामयाब सिद्ध हो रही हैं जी ये मीटिंग कितनी जा रही हैं? कितनी कामयाब है जो अपनी विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, कितनी कामयाब है जो हमारी जो विलेज लेवल डिफेंस कमेटी है कितनी कामयाब हो रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सफलता में इनका बहुत बड़ा, केवल हमको ही नहीं, आर्मी को भी, BSF को भी, यहाँ की पुलिस को भी, प्रशासन को भी, और विलेज कमेटियाँ मिलकर के ही इस एरिए में जो कुछ भी अब तक काम कर पाए, और विशेष करके ड्रग और हथियार जो आ रहे हैं
उनको पकड़ाने में, ड्रोन को गिराने में, विभिन्न प्रकार की सूचना देने में भी विलेज कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और विलेज कमेटी के कारण से हमको गांव की सारी बातों की जानकारी मिलती है। मैं ये दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। अभी मेरा जो पैदल यात्रा है वो इस जिले को कवर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस जिले के नज़दीक हूँ, तो कम से कम विलेज कमेटी के लोगों से बात करके वो नशा मुक्त पंजाब कैसे बढ़े, रंगला पंजाब कैसे बने, आपको क्या ऐसे लगता है जिससे हम काम करें तो बच्चों को इस नशे से रोक सकें। सर ये बॉर्डर बेल्ट है जहाँ पे सर ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है, और बच्चे जो बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण भी हो सकता है कि क्या है कि यहाँ जो समस्या पिछली बार भी आई है, एक तो लड़कियों की एजुकेशन का यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, डीसी साहब को कहा है कि आप जगह लोकेट करो। हम किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को यहाँ कहेंगे कि एक कैंपस यहाँ खोले ताकि यहाँ के बच्चों की एजुकेशन हो। मेडिकल की दृष्टि से भी जितनी व्यवस्था चाहिए उतनी अभी तक नहीं बन पाई। मैं सोचता हूँ कि कोई एक पॉइंट पर एक ज़िले में इस साल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक साथ हम 5 साल तो एक ज़िले में नहीं बना पाए। सर जहाँ पे रोजगार के साधन भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार के साधन का सरकार जितनी व्यवस्था कर सकेगी वो तो कर रही है। सरकार की कई योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुद्रा योजना के कारण से मिलता है ना, करोड़पति या लखपति दीदी बनो वो योजना है। स्वयं सहायता समूह के कारण से बहुत बड़ा पैसा उनको गांव के लिए मिलता है। जो पंचायतों को विकास फंड मिलता है उसको भी करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले बॉर्डर विकास का पैसा आता था, अभी कुछ समय से बंद है, ये वापस शुरू हो ताकि बॉर्डर के गांवों को हम सुविधा दे सकें। सर जैसे देखा जा रहा है पुलिस ने नशे की तस्करी पकड़ने की मुहिम शुरू की हुई है सर, लेकिन देखा जा रहा है कि सर छोटी मछलियाँ अभी तक हाथ में आ रही, कोई बिग नहीं आ रही। क्या है कि छोटी मच्छी भी आपकी बार तो बड़ी बड़ी भी आई है, कईयों के मकान गिराए हैं, कई करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की है। सरकार भी पिछले 2 महीनों से अभियान में लगी हुई है। हम भी जनता के साथ लेकर के इस रोक सकते हैं, तो प्रयास करें। ये पैदल यात्रा भी उसी में है कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, आप सब जुड़ेंगे तो कर पाएंगे। तो उसमें आगे तो बढ़ रहे हैं। अब सफलता कब मिलेगी इसकी एकदम कोई गारंटी तो कर नहीं सकता, लेकिन 2 कदम भी चलेंगे सही रास्ते पर तो 2 कदम तो रास्ता छोटा होगा। सर जैसे बठिंडा में देखा गया एक पुलिस मुलाजिम काबू है, यहाँ कोई पुलिस में स्क्रीनिंग होगी? क्या है कि अच्छे लोग भी है पुलिस में, खराब लोग भी हैं। जो खराब लोगों की जानकारी मिलती है पुलिस उनके खिलाफ एक्शन करके ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। सर ये बॉर्डर पार से जहाँ से ज़्यादा ड्रोन के जरिए नशा आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ड्रोन को रोकने के लिए एक तो ये विलेज कमेटी हमारा सहयोग कर रही, जिसके कारण से हम कई ड्रोन गिरा रहे। पहले बड़े ड्रोन आते थे वो लगभग गिरा दिया, अब उतना महंगा ड्रोन वो भेजते नहीं, छोटे भेज रहे। उसको भी हम एंटी ड्रोन के भी सिस्टम डेवलप ही हो गया। तो पिछली बार हमको गृह मंत्री जी ने 9 एंटी ड्रोन दिए हैं, अभी 23 उन्होंने और स्वीकृत किया। अभी राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया एंटी ड्रोन खरीदने के लिए किया। तो एकदम तो व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी लंबी बॉर्डर है 533 किलोमीटर की, लेकिन हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको चेंज करके अभी काबू करेंगे। ठीक, थैंक यू सर।